Good morning, students. Welcome. Now, let's start with the new chapter of science. Chapter number 3, Synthetic Fibers and Plastics, Part 1. Now, students, our first topic is fibers. What are fibers? The clothes which we wear are made of fabrics. You know, आप clothes जो पहनते हैं उसे हम fabrics कहते हैं. And the fabrics are made from fibers obtained from artificial or natural sources. So we can say fabrics are made by weaving fibers. Fibers को weave करते हैं, बुनते हैं, or threads obtained from natural or artificial sources. They can be of two types. They are of two types. First are natural fibers and then next are synthetic fibers भी बोलते हैं, उसे artificial fibers भी बोलते हैं, या man-made fibers. Any you can say, give the name, any name you can give. Now, what are natural fibers? Natural fibers are produced by plants or animals. Means naturally, by natural sources. Examples: cotton, wool, silk, etc. You know, cotton is a plant product. Wool we get from sheep. Silk we get from silkworm. So all these are either plant or animal products. Next comes synthetic fibers. Synthetic fibers or man-made fibers are textile fibers made by human beings using natural materials or petrochemicals. Natural materials use करके but processing उसका पूरा industries में, mills में होता है, textile industries होती हैं, तो they are man-made. किसी प्लांट से डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं होता है. प्लांट की चीजें यूज किए जाएंगे, सोर्सेज यूज किए जाएंगे, बट दे आर नॉट डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल. सो दे आर आर्टिफिशियल फाइबर्स और मैन-मेड फाइबर्स. फॉर एग्जांपल, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्सेट्रा. All these are the examples for the synthetic fibers. Yes, students. Now you can see these two figures. Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread. आप पहला A figure देखो, एक beads, मोतियों का necklace है, एक thread से जुड़ा हुआ है. और try to join a number of paper clips together to make a long chain. Paper clips देखिए ऐसे आती है, U-pins कहते हैं मैंने. इनको भी एक chain की तरह कैसे tie कर दिया गया है, एक दूसरे के साथ connect कर दिया गया है. Is there a similarity between the two? इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है? ये एक ही साथ कनेक्टेड एक चेन फॉर्म कर रहे हैं, एक चेन जैसी इनमें सिमिलैरिटी है. सो सिंथेटिक फाइबर में भी कुछ इसी तरह से यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. that is how the synthetic fibers, उनमें भी चेन्स होती है, कनेक्टेड चेन्स होती है. नाउ लेट्स सी. Now you will be able to connect after seeing that figure. What are synthetic fibers and what is a synthetic fiber made up of? A synthetic fiber as well as plastic, जो अब इसके बाद हम next topic पढ़ेंगे, fibers के बाद plastic ही आएगा, is made up of a chain of small units called monomers which combine to form polymers. जैसे small beads connect करके क्या form किया, एक chain form कर दी. तो इसी में भी सिंथेटिक फाइबर्स में भी स्मॉल यूनिट्स जो है, मोनोमर्स है, वो एक दूसरे से कंबाइन करके एक चेन फॉर्म करते हैं जिसे हम पॉलीमर्स कहते हैं. Now there is a definition for monomers and polymers. Monomers, a monomer is a single molecule that can bond with other identical molecules to form polymers through a process called polymerization. एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. जैसे एक मोती को हमें सिंगल मॉलिक्यूल बता सकते हैं, बीड्स हैं वो सिंगल मॉलिक्यूल्स आपस में चेन में कनेक्ट होके एक लंबा पॉलीमर चेन बना देते हैं. तो मोनोमर्स हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, जो आपस में कनेक्ट होके पॉलीमर्स बनाते हैं. एंड द प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. Polymer is a Greek word in which poly means many. Poly मतलब बहुत ज्यादा and mer means units. Hence, polymers are large molecules made up of several molecules or monomers linked together. जैसे बीड्स को कनेक्ट किया, आप फिगर एक बार फिर से देखें, बीड्स को कनेक्ट किया तो एक पूरी चेन बनी. सिमिलरली मोनोमर्स को कनेक्ट किया तो हमको पॉलीमर्स मिले, राइट. मोनोमर्स जो है वो आपस में कनेक्ट होके पॉलीमर्स बनाते हैं, सेम, इसलिए वो सिमिलैरिटी बताई गई है. So students, we can say that a polymer is made up of many repeating units. Yeah. Now next example of polymers. All synthetic fibers such as rayon and nylon are polymers. जो भी synthetic fibers हैं वो एक प्रकार के polymers हैं.
Polymers are also found in nature. Like cotton is a polymer called cellulose. Cotton भी एक प्रकार का polymer है. Its name we call it as cellulose. Cellulose is made up of number of single units या जिसे हम monomers कहें called glucose. You can see in the figure. Figure देखो आप कैसे connected है. Cotton fiber is mostly cellulose and cellulose is made up of chains of sugar, glucose linked together in a certain way. एक हेक्सागोनल फिगर दिख रहा है, आपस में ये लोग लिंक्ड हो जाते हैं और इससे बनता है पूरा कॉटन पॉलीमर. सो कॉटन इज ऑल्सो पॉलीमर मेड अप ऑफ मोनोमर्स. क्या यूज हो रहे हैं उनमें? ग्लूकोज. और उस पॉलीमर को नाम दिया गया है सेल्यूलोज. Polymerization reaction once more, the process of linking small monomers together to form polymers is called polymerization. Very important definition है, सबको याद रखनी है. Students, now our topic is types of synthetic fibers. Synthetic fibers में भी काफी सारे types होते हैं. First is rayon. Now students, you must have studied in your 7th class that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China. China में discover हुआ था and it was kept as a closely guarded secret for a long time. बहुत लंबे समय तक Chinese इसको secret रख के बैठे थे. सिल्क कैसे बनता है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत, सिल्क इज वेरी कॉस्टली, वेरी एक्सपेंसिव और एक खूबसूरत फैब्रिक होता है. उसको काफी सालों तक सीक्रेट रखा गया. सिल्क बनता कैसे है या कहाँ से आता है, आगे जाके फिर डिस्कवर हुआ कि सिल्क वॉर्म्स में से बनता है. सो फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वर वेरी कॉस्टली बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर. उसका टेक्सचर इतना अच्छा था, उसका स्मूथनेस फैसिनेटेड एवरीबडी. हर एक को फैसिनेट किया, हर एक को अट्रैक्ट किया. एंड द एटम्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली. और फिर आर्टिफिशियली सिल्क को बनाने के अटेम्प्ट्स बहुत कंट्रीज ने किए. लाइक रेयॉन इज अ वर्सेटाइल फाइबर and can imitate the feel and texture of silk, wool, cotton and linen with depth and slipperiness akin to nylon. रेयॉन एक वर्सेटाइल फाइबर है, एक बहुत ही बेहतरीन, एक वैरायटी वाला फाइबर है जो काफी वैरायटी वाला इसलिए है, काफी चीजों इमिटेट कर सकता है. इमिटेट मतलब उनके जैसा दिखता है, लगता है. उससे आपको एक फील, एक टेक्सचर किसके जैसा फील होगा, जैसे सिल्क हो उसको इमिटेट कर सकता है रेयॉन, वूल को इमिटेट कर सकता है, कॉटन के जैसा भी दिख सकता है. एक अरेंजमेंट के साथ स्लिपरीनेस जो होती है इसमें नायलॉन के जैसी होती है, सिमिलर टू नायलॉन. सो इट्स अ वेरी गुड फैब्रिक और वो काफी सारी चीजों को रिप्लेस कर सकता है, मतलब उनकी जगह पे वो वैसा फील दे सकता है. नाउ व्हाई रेयॉन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क? रेयॉन रिजेंबल्स सिल्क इन अपीयरेंस, टेक्सचर एंड शाइन. रिजेंबल मीन उसके जैसा ही दिखता है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा गया है. दो नाम है, आइदर यू कॉल इट रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क. सो hence it is known as artificial silk. Silk fiber was discovered in China and made from silkworms. It had a beautiful texture and was very costly, which I explained you. By the end of the 19th century, scientists managed to make an artificial silk-like fiber made by treating wood pulp chemically. Wood का pulp use किया जाता था, हमारे जो plants हैं उनमें से wood pulp use करके chemically उसमें treatments करके और रेयॉन बनाने में हमारे साइंटिस्ट कामयाब हो गए. दे गॉट अ सक्सेस, सो इट वाज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द यूजेस ऑफ रेयॉन. दिस मैन-मेड फाइबर यूजेस नेचुरल मटेरियल वुड पल्प. प्लांट्स में से वुड पल्प नेचुरल रिसोर्स को यूज करके बनाया जाता है एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर. इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी डाइड इन वेराइटी ऑफ कलर्स. उसको काफी कलर्स में डाई कर सकते हैं, सिल्क से सस्ता पड़ता है. इट कैन बी मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स एंड बेडस्प्रेड्स. कॉटन के साथ मिक्स करके हम बेडशीट्स एंड बेडस्प्रेड्स बना सकते हैं. मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स. वूल के साथ मिक्स करके उसको कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स का फॉर्म दे सकते हैं. यूज्ड टू मेक अदर होम फर्निशिंग सच एज कर्टन्स एंड टेबल क्लॉथ. इनके लिए भी ये रेयॉन मटेरियल यूज होता है. सो इट इज अ मल्टीपर्पज टाइप, यू कैन से. उसको काफी सारी चीजों में, बेडशीट्स में, वूलन्स में, होम फर्निशिंग्स में, काफी सारी चीजों में यूज किया जा सकता है. Yes students, understood? Now students, our next artificial fiber or we can say synthetic fiber is nylon. Nylon is the first synthetic fiber to be prepared in 1931
विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटीरियल्स, कोई भी नेचुरल रॉ मटीरियल्स को यूज नहीं किया गया, लाइक मटीरियल्स प्रोड्यूस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। इससे प्रीवियस जो हमने रेयन देखा था उसमें वुड पल्प का यूज किया गया था, वुड का पल्प यूज किया गया था, सो दैट वाज नेचुरल मटीरियल, बट इन दिस इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। Now, next is which properties make nylon suitable for making, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है जो हम ये चीजें उसमें से बना सकते हैं, कौन सी चीजें, लाइक फर्स्ट इज मेकिंग रोप्स यूज फॉर रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग यू नो इट्स अ वेरी टफ एक्टिविटी, तो उसके लिए नायलॉन ही क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग फाइबर, लाइट वेट एंड वेदर रेजिस्टेंट, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इट इज यूज फॉर मेकिंग रोप्स यूज फॉर रॉक क्लाइंबिंग। Then it is also used for making fishing nets. Why? Because it is strong, again strong fiber, elastic, elasticity है उसमें काफी, and it is water resistant, ज्यादा पानी absorb नहीं करता है. That's why it is made used in making fishing nets. Next, it is used in also used in making tents. Why? Because it is strong, light. Tents को हमेशा light weight होना चाहिए, so it is easy to carry from one place to other. Because tents लोग वहां जाते हैं जहां adventurous camps वगैरह होते हैं, so it is easy to carry. Does not absorb much water, तो रेन में भी प्रोटेक्शन मिलती है, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, जो हमने ऊपर फिशिंग नेट वाले में भी देखा, वाटर रेजिस्टेंट है, एंड ड्राइज क्विकली, अगर गीला होता भी है, बारिश थोड़ी बहुत होती है तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, इसलिए वो जल्दी सूख भी जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज नायलॉन इज यूज्ड इन ऑल दीज थिंग्स। Next is uses of nylon, some more uses we will see. Developed in 1931, this thermoplastic silky material is strong, elastic, light, lustrous and easy to wash. It is very easy to wash it. A nylon thread is in fact stronger than a steel wire. It is more stronger than a steel wire. You can imagine steel भी कितना hard substance होता है, उससे भी ज़्यादा stronger होता है nylon wire. Hence it is used to make clothes including socks, make parachutes. Parachutes you all know, in the flights and all parachutes are used, as well as ropes for rock climbing we have just seen, and make ropes, toothbrushes and car seat belts etc. आपके जो कार के seat belts हैं वो nylon material के बनते हैं. Make tents, curtains and sleeping bags. So all these things are made because nylon is a very strong fiber. Yeah. Next is polyester. Now polyester is also a synthetic fiber. Polyester fiber does not get wrinkled easily. Wrinkle means उसमें जल्दी से wrinkles नहीं पड़ते. अगर आप बिना press किए भी use करेंगे तो it is good to go. Hence, a fabric made from this fiber is easy to wash and does not need to be ironed. Press करने की जरूरत नहीं है, ironing की भी जरूरत नहीं होती है, which makes it suitable for dress material. काफी dress materials के लिए use किया जाता है. Polyester is made up of two words, poly, which means many, and ester, which is a chemical. Ester is a chemical which you will learn about ester in higher standards, probably in 10th standard. What is ester? It is a fruitifying, smell giving chemical. Esters are chemicals, which give fruits their smell. Now some popular polyester fibers are terylene. Terylene आप लोग ने अगर नहीं भी सुना है तो आपके parents ने सुना होगा. Often known by brand name Dacron, which can be drawn into a very fine fiber and can be woven like any other yarn. Terylene के yarns मिल सकते हैं उसको. It is a very good material which can be drawn into a fine fibers. बहुत ही पतले fibers में उसको हम draw कर सकते हैं. Next is polyethylene terephthalate, PET. हम PET PET bottles भी कहते हैं, right? You must be remembering PET जो भी drinking bottles वगैरह आती हैं उनको हम PET bottles कहते हैं. Is used for making wires, films, bottles, utensils and other products. Blended fibers are formed by mixing natural and synthetic fibers. कुछ ब्लेंडेड फाइबर्स भी बनाए जाते हैं जिनमें नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स को मिक्स किया जाता है. पॉलिस्टर इज ऑफन यूज्ड इन ब्लेंडेड फाइबर्स. तो उसमें कौन सा सिंथेटिक फाइबर्स मोस्टली यूज किया जाता है? पॉलिस्टर, जो नेचुरल फाइबर्स के साथ कंबाइन किया जाए. फॉर एग्जांपल, पॉलीवूल इज मेड बाय मिक्सिंग पॉलिस्टर एंड वूल. पॉलीकॉट इज मेड बाय मिक्सिंग पॉलिस्टर एंड कॉटन. टेरिकॉट is made by mixing terylene and cotton.
सो ये आपको नाम उससे ही याद पड़ जाएगा. पॉलीवूल मीन्स मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल. पॉलीकॉट मीन्स मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन. एंड टेरिकॉट इज द मिक्सचर ऑफ टेरिलिन एंड कॉटन. See here one example is explained with figure. पॉलिस्टर और कॉटन को मिला के जो सेंटर में आप देख रहे हैं ओवरलैपिंग सर्कल के बीच में पॉली कॉटन है, तो उसमें दोनों की क्वालिटीज आ जाती है. मिक्स करने का रीजन क्या है? तो जो सिंथेटिक फाइबर की क्वालिटीज हैं और जो नेचुरल फाइबर्स की क्वालिटीज है वो कंबाइन में पॉली कॉटन में आ जाएंगी. लाइक आप पॉलिस्टर की क्वालिटीज देख सकते हैं, ड्यूरेबल, ड्राइज क्विकली, लेस रिंकल्स, लेस फेडिंग. फेडिंग मीन्स जल्दी कलर नहीं जाता. एंड कॉटन की वहां पे है नेक्स्ट साइड, सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग, इजी टू डाई एंड ब्रीदेबल. हमको सांस लेने में कॉटन एक्चुअली इजी रहते हैं, क्लोथ्स अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हमको कंफर्ट देते हैं. तो इन दोनों को अगर मिक्स किया जाए तो पॉली कॉटन की क्या प्रॉपर्टीज आ गई? नो श्रिंकेज मींस रिंकल्स नहीं होंगे, श्रिंकिंग नहीं होगा, कपड़ा छोटा नहीं पड़ेगा, अफोर्डेबल होता है, सस्ता भी पड़ता है. कीप शेप एंड कलर, शेप भी मेंटेन रहता है, जैसे रिंकल नहीं पड़ते और कलर्स भी नहीं जाते हैं. ब्रीदेबल, जो कॉटन की क्वालिटी है वो भी आ गई, सॉफ्ट है वो भी कॉटन की क्वालिटी है, लेस फेडिंग जो पॉलिस्टर की. मतलब सारी क्वालिटीज जो अलग अलग कपड़ों में है मिलके एक ही मटेरियल में आ गई. तो यू आर ए ना बेनिफिट मिल जाता है दोनों का. यस स्टूडेंट्स, नाउ यूजेस ऑफ पॉलिस्टर. क्या यूजेस हैं पॉलिस्टर के? सिंस पॉलिस्टर इज स्ट्रॉन्ग, wrinkle resistant and water resistant, it has several uses. It can be used to make a variety of textiles like including saris, curtains, dress materials, etc. and can be blended with natural fibers like cotton and wool. जो भी हमने सीखा या एंड साड़ीज में, कर्टन्स में, ड्रेस मटेरियल, इवन शर्ट्स आती हैं पॉलिस्टर्स की. मेक फिल्म्स, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स एक्सेट्रा. फिल्म्स जो यूज होती हैं, फिल्म के रील्स जो होते हैं वो पॉलिस्टर से बनते हैं. मेक सेल्स ऑफ सेल बोट्स में जो सेल्स यूज होते हैं. मेक वाटर होजेस फॉर फायर फाइटिंग पर्पजेस. फायर जब भी आग लगती है, फायर फाइटर्स जो पाइप्स लाते हैं ना, होस पाइप्स कहते हैं हम उन्हें, वो जो होस पाइप्स बनते हैं वो पॉलिस्टर के होते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज. So students, for this video we have covered many topics. आगे हम इसको next part में cover करेंगे. I hope you understood everything. Just go through the video. Yes students. Thank you. Stay safe. Keep studying.